Good morning, students. I, Dr. Rani Jindal, Assistant Professor in Chemistry, Government PG College for Women Sector 14, Panchkula. Today we start Ionic Solid, BSc First Semester, Inorganic Chemistry, 4th chapter. So, ionic solid. What is ionic solid? Ionic solids contains an ionic bond which is formed between atoms by the complete transfer of one or more valence electrons. Elements can gain or lose electron to attain nearest noble gas configurations. So ionic bond is formed between cations and anions. Cations कैसे बनते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है टू अटेन ए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एंड अनाइंस कैसे बनते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है टू अटेन ए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस. तो आइंस जो होते हैं, हमारे जितने भी मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, वो सब क्या बनाती हैं? कीटाइंस बनाती हैं. जैसे सोडियम है, सोडियम, पोटाशियम, रब्डीनियम, सीजियम, फ्रांसियम, सब जो मेटल्स हैं ये कीटाइंस बनाती हैं बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उनमें से इलेक्ट्रॉन लॉस करना ईजी होता है. और नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल क्लोराइड है, क्लोराइड, फ्लोराइड, जितने भी हैलाइड्स हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, ये सब क्या बनाते हैं? ये इनकी टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं हैलाइड्स की, क्लोराइड, फ्लोराइड, तो इनके जो वैलेंस शेल है इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है. तो इनको ये होता है कि अगर इनको कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, सो दैट इट कंप्लीट्स इस ऑक्टेट टू अटेन ए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. तो इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन कर कर एनाइंस बनाते हैं. तो रिएक्शन बिटवीन कीटाइंस एंड एनाइंस, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फॉर्म्स ए आयनिक बॉन्ड. तो व्हाट इज आयनिक बॉन्ड? देखिए, हियर दिस इज ए कीटाइंस एंड एनाइंस, दे फॉर्म ए ionic bond. Sodium metal loss electron to form a Na positive, and chloride atom gain electron to form a chloride negative. So form a ionic bond. Then what are the general characteristics of ionic solid? First characteristic is crystalline nature. Ionic compounds are crystalline in nature. When we study the X-rays of these compound, तो हमें पता चलता है कि these compounds are not in a molecular form but consist of ions of opposite charges in some definite geometric pattern. Each ion is surrounded by a number of oppositely charged ions. The geometric arrangement of ions is different for different ionic substances. This mode of arrangement depends upon the size of the ions and also on the respective charges on them. Ionic compounds, they are not molecular in nature, but it consists of charges, opposite charges, and each ion is surrounded by different number of ions. Then melting and boiling point of ionic solids. Due to the presence of electrostatic force of attraction between the ions, large amount of energy is required to break the ionic bonds. So ionic solids have high melting and boiling point because it has a large force of attraction, so it has a high melting and boiling point. Then there is a variation in melting point of different ionic solids. This is due to charges on the ions and ionic radii. Charges on the ion, first is dependence of melting point on the ionic distance. Closer the ions in a crystal,
larger will be the electrostatic force of attraction between the oppositively charged ions. Consequently, large amount of energy is required to break the bond, and higher is the melting point. For example, in sodium halide, the melting point decreases from sodium fluoride to sodium iodide. As the size of the anions increases from fluoride to chloride, the forces between sodium positive and halide ions increases. Halide ions become weak and consequently melting point decreases as given below. It means melting point depends on the ionic distance. If the distance between the ions is less, then there is a strong force of attraction and melting point is high. If the distance between the ion is more than greater, then melting point is less. So here is the chart for the different salts. Sodium fluoride has a melting point of 1270 Kelvin. Sodium chloride has 1073, sodium bromide 1023, and sodium iodide 924 Kelvin. As the size of the halide ion increases, as we go from sodium fluoride to sodium iodide, size of the iodide ion increases. It means the distance between the anions increases and melting point decreases. In case of sodium fluoride, size of the anion is less, so the distance will be less and melting point is high. Then है dependence of melting point on charges. In case interionic distance is almost the same, अगर interionic distance same है, then melting point is determined on the charges. Higher the charges, higher is the melting point. For example, if we compare the melting point of sodium chloride and BeO, the sodium chloride has a melting point of 1073 Kelvin, whereas beryllium oxide has a melting point of 2195 Kelvin. The higher melting point of beryllium oxide is due to stronger interionic attraction between doubly charged Be2 positive ions and O2 negative ions. Comparison क्यों है? Because there are doubly charged beryllium ions, but in case of sodium ions, these are singly charged. Next property is hardness. Ionic solids are hard and rigid. The hardness of ionic solid is due to the presence of strong forces of attraction between the positive and negative ions. The hardness increases with decrease in the interionic distance and increase in the ionic charges for crystals with similar structure. For example, lithium chloride and strontium oxide have a similar structures and their interionic distance are also the same. Strontium oxide is harder than lithium chloride because of higher charge of the ions. तो क्या है इसमें कि जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ठीक है, और जो इनकी जो हार्डनेस है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? अगेन टू थिंग्स के ऊपर डिपेंड करती है. एक हो गया इंटर आयनिक डिस्टेंस, दूसरा हो गया चार्ज. ठीक है, अगर इंटर आयनिक डिस्टेंस कम है तो आपके जो सॉलिड्स हैं वो हार्ड होंगे. अगर उनके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो आपके सॉलिड्स क्या होंगे? हार्ड होंगे. ये देखिए देयर इज़ ए कंपैरिजन है. हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है. अब यहाँ पे एज वी गो फ्रॉम मैग्नीशियम ऑक्साइड टू बेरियम ऑक्साइड द इंटर आयनिक डिस्टेंस क्या हो रहा है? आपका इंक्रीज हो रहा है.
दैट इज 2.77 हो रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का इंटर आयनिक डिस्टेंस है 2.05। इट मीन्स एज वी गो डाउन द मैग्नीशियम टू बेरिलियम ऑक्साइड, तो हमारा इंटर आयनिक डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, हार्ड होगा, बेरिलियम ऑक्साइड आपका इतना हार्ड नहीं होगा। नेक्स्ट है ब्रिटलनेस। जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं यूजुअली ब्रिटल होते हैं एंड दे कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू पीसेस। हम इनको इजीली पीसेस में ब्रेक कर सकते हैं अगर हम उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। इसका रीज़न क्या है, एन आयनिक क्रिस्टल आपको पता है क्लोजली पैक्ड आयंस होते हैं अपोजिट चार्जेस का। when enough force is applied to ionic crystal, one layer of ions moves across the second layer. So here the one layer is moved over the second layer. Then है solubility of ionic compounds. Ionic compounds are generally soluble in water and other polar solvent having high dielectric constant. Since water has a high dielectric constant, it decreases the electrostatic force of attraction between the ions. As a result, ions get separated from one another to give a solution. The ions in the solution acquire greater freedom of motion. तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं जिनका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उनमें ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर। ऐसे जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ता जाता है तो आयनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो उन सॉल्वेंट्स में ज़्यादा होती जाती है। उन सॉल्वेंट्स में उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। कैसे होती है इनकी सॉल्युबिलिटी, जब हम किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जो पॉजिटिव एंड होता है डाइपोल का, मींस वाटर एक डाइपोल की तरह एक्ट करता है, तो पॉजिटिव एंड होता है डाइपोल का इंटरैक्ट करता है विद द नेगेटिव आयन, व्हाइल द नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल इंटरैक्ट विद द पॉजिटिव आयन। ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन द आयन्स and the solvent, large amount of the energy is released and this is known as a hydration energy. If the hydration energy is greater than the lattice energy, the crystal break down and goes into the solution, and the solubility tend to decrease in non-polar solvent such as petrol, gasoline, etc. having low dielectric constant. It means आयनिक जो solids हैं वो soluble होते हैं in a solvent with high dielectric constant and जितने भी पोलर सॉल्वेंट्स होती हैं उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। कैसे होती है कि जब हम आयनिक सॉलिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो जो पॉजिटिव एंड होता है डाइपोल का, मींस वाटर का, वो करता है नेगेटिव एंड। जैसे हमारे आयनिक कंपाउंड है उसका नेगेटिव एंड, जैसे सोडियम क्लोराइड है, नेगेटिव एंड इसका क्या होगा, क्लोराइड आयन, तो उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, और जो नेगेटिव एंड होता है डाइपोल का वो इंटरैक्ट करेगा द पॉजिटिव एंड ऑफ द सॉल्ट के साथ। ठीक है, तो उनके बीच में जब इंटरेक्शन हो जाएंगी तो आपका जो सॉल्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपका जो सॉल्ट है वो सोल्यूशन में चल जाएगा, और इससे क्या होगी, हमारी एनर्जी रिलीज होगी जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। एंड अगर ये हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी जो होती है, जो क्रिस्टल्स को बनाती है, उससे ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं कि हमारा आपका जो सोल्यूशन है उसमें चला जाएगा, मीन्स सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर लैटिस एनर्जी बढ़ जाए हाइड्रेशन एनर्जी से तो आपकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने ये शो किया हुआ है कैसे आपका जो आयनिक सॉलिड्स हैं सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होते हैं। उसके बाद है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन ए मोल्टन स्टेट, नॉट इन ए सॉलिड स्टेट। इसका मतलब अगर आपका सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में पड़ा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। अगर हम सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या फिर वो मोल्टन स्टेट में है तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन ए
molten state, not in a solid state. तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स क्या शो करते हैं? दे फॉर्म क्रिस्टल्स, दे हैव ए हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल, they have high enthalpies of fusion and vaporization than molecular compound. They conduct electricity when dissolved in water. Ionic solid do not conduct electricity, so they are good insulators also. किस में आयनिक सॉलिड कंडक्ट नहीं करते इलेक्ट्रिसिटी? इन ए सॉलिड स्टेट. नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग ऑफ आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स. अगर हमने क्लोज पैकिंग देखनी है, कैसे आपके क्रिस्टल्स में पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, तो हमें कंसीडर करना होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक स्फीयर्स की फॉर्म में हैं. तो उनका हमारे पास जो स्फीयर्स हैं उनको इस तरह से अरेंज करते हैं क्रिस्टल में, सो दैट दे ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस. ठीक है, मतलब उनकी पैकिंग इस तरह से हो सो दैट कि उनके बीच में स्पेस जो है कम बचे. ठीक है, तो ये हमने ये पैकिंग दिखाई हुई है. दीज आर द हार्ड स्फीयर्स. हार्ड स्फीयर्स है, तो इसमें आप देख सकते हैं जो सेंटर वाली एस स्फीयर है, इट इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर्स. 6 स्फीयर सराउंडिंग ए स्फीयर. ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशंस. अगर जैसे हमारे पास ये पैकिंग के 2 अरेंजमेंट्स हैं, 2 अरेंजमेंट्स हैं. पहली पैकिंग में हमने क्या किया हुआ है, जैसे फर्स्ट हमने रो स्फीयर्स की रख दी है, वो जो सेकंड स्फीयर हैं वो बिल्कुल फर्स्ट स्फीयर के नीचे वर्टिकली सेम होने चाहिए, मतलब, और जो थर्ड लेयर है वर्टिकली सेम होनी चाहिए और फोर्थ लेयर उसके बिल्कुल नीचे ही होनी चाहिए. तो इसमें हमारे पास क्या है, इस टाइप की अरेंजमेंट 1 को हम कहते हैं ए टाइप. इसमें क्या है, द स्फीयर इन द सेकेंड रो मे बी प्लेस इन द वे दैट दे आर टचिंग ईच स्फीयर ऑफ द फर्स्ट रो एग्जैक्टली अबव द स्फीयर्स ऑफ द फर्स्ट रो. इन दिस टाइप द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है कि कितनी स्फीयर्स ने, एक स्फीयर को कितनी स्फीयर्स ने टच किया हुआ है. तो यहाँ पे अरेंजमेंट 1 में हम देखते हैं कि जो वहाँ यहाँ पे एक सेंट्रल स्फीयर है, इट इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर. सो इन अरेंजमेंट 1 द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. और सेकंड अरेंजमेंट है अरेंजमेंट 2. इसमें क्या है, हमने जो सेकंड रो स्फीयर्स हैं वो स्फीयर्स इन द सेकंड रो मे बी प्लेस्ड इन द डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट रो. तो इसमें हमारे पास जो पैटर्न आता है वो होता है ए बी टाइप. मतलब आपके पास ये थोड़ा डिफरेंट होता है. पहला हो गया आपके पास ए अरेंजमेंट, दूसरा हमारे पास अरेंजमेंट है आपके पास डिफरेंट हो जाता है, अरेंजमेंट 2 है. ये हो गया आपके पास ए अरेंजमेंट, दिस इज ए टाइप अरेंजमेंट. इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, अरेंजमेंट 1 में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, अरेंजमेंट 2 में कोऑर्डिनेशन नंबर है 6. नेक्स्ट है कि अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं, अरेंजमेंट 1 एंड अरेंजमेंट 2 का, अरेंजमेंट 1 में द स्फीयर्स आर पैक्ड इन सच ए वे दैट द रोज आर हैव हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल अलाइनमेंट. यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल अलाइनमेंट है. और जो आपके पास अरेंजमेंट 2 है, इसमें हमने जो सेकंड स्फीयर्स को कहाँ पे रखा हुआ है, डिप्रेशंस ऑफ द फर्स्ट रो. तो अगर हम इन दोनों की कंपैरिजन करते हैं तो जो अरेंजमेंट 1 है वो लेस क्लोजली पैक्ड है देन द अरेंजमेंट 2. इस अरेंजमेंट 1 में 52.4% ऑफ द अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड है, बट इन अरेंजमेंट 2 में 60.4% अवेलेबल स्पेस इज ऑक्यूपाइड. अगर हम दोनों का कंपैरिजन करते हैं अरेंजमेंट 1 एंड अरेंजमेंट 2 में, तो जो अरेंजमेंट 2 है इट इज़ मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि उसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई है 60.4 स्पेस ऑक्यूपाई है. नेक्स्ट है क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस.
क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशंस में हमारे पास हम क्या करते हैं, इन अरेंजमेंट 2 में क्लोज पैकिंग में हम बिल्ड करते हैं फर्स्ट लेयर के ऊपर सेकंड लेयर को. वी कैन बिल्ड अदर लेयर्स अबव द फर्स्ट लेयर टू एक्सटेंड द पैकिंग इन 3 डायमेंशंस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होल्स हैं इन द फर्स्ट रो. अगर हम देखते हैं, अगर हम इस टाइप की अरेंजमेंट को देखते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होल्स. One hole is marked as A and the other holes is marked as B. These holes are equivalent but the spheres of the, अगर हमने अब सेकंड इसके ऊपर हमने, अगर हम इस अरेंजमेंट को देखते हैं, ए अरेंजमेंट को देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 टाइप्स के होल हैं. एक होल्स हैं ए और दूसरे हैं बी. अगर हमने इसके ऊपर सेकंड लेयर बिल्डअप करनी है, ठीक है, तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं कि हम या तो सेकंड लेयर ए होल्स के ऊपर बिल्डअप करेंगे या फिर हम करेंगे बी होल्स के ऊपर बिल्डअप करेंगे. तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं सेकंड लेयर की. हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो हम ए होल्स के ऊपर बिल्डअप करेंगे या फिर बी होल्स के ऊपर बिल्डअप करेंगे. ठीक है जी. तो हमारे पास जो है, इसमें हमने जब एक होल्स के ऊपर बिल्डअप कर ली सेकंड लेयर, तो हमारे पास एक टाइप के होल्स बच जाते हैं. ठीक है. तो अब जब हम थर्ड लेयर बिल्डअप करेंगे, पहले हमारे पास थी फर्स्ट लेयर, उसमें हमारे पास 2 टाइप के होल्स थे, ए एंड बी. जब हमने सेकंड लेयर बिल्डअप की, वो हमने या तो ए होल्स के ऊपर की या फिर बी होल्स के ऊपर की. अगर हमने बी होल्स के ऊपर की तो हमारे पास ए होल्स बच गए. अब हमने जब थर्ड लेयर बिल्डअप करनी है, अब हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं. या तो हम जो थर्ड लेयर है, जो फर्स्ट लेयर के अनऑक्यूपाइड होल्स थे, उसके ऊपर थर्ड लेयर बिल्डअप करेंगे, या फिर हम हमारी जो सेकंड लेयर से बिल्डअप होने से नए होल्स बने थे, उनके ऊपर हम थर्ड लेयर बिल्डअप करेंगे. तो इससे हमारे पास एक आती है, अगर हम थर्ड लेयर बिल्डअप करते हैं सेकंड लेयर के ऊपर, जो हमारे पास नए होल्स बनते हैं, जब हम सेकंड लेयर बिल्डअप करते हैं तो उससे जो होल्स बनते हैं उसके अगर ऊपर हम थर्ड लेयर बिल्डअप करते हैं, तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम कहते हैं ABA टाइप. क्योंकि इसमें जो थर्ड लेयर बनती है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाती है. ठीक है. तो इस टाइप की अरेंजमेंट को हम कहते हैं ABA टाइप अरेंजमेंट, या फिर इसका नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. ठीक है. कि अगर हम थर्ड लेयर को बिल्डअप करते हैं, जो सेकंड लेयर के होल्स हैं, तो हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाती है. एंड दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज ABA type of arrangement, and this is known as hexagonal close packing. So this is the hexagonal close packing arrangement. Next है cubic close packing. अगर दूसरा तरीका क्या है थर्ड लेयर बिल्डअप करने का, कि जो हमारी फर्स्ट लेयर के अनऑक्यूपाइड होल थे, अगर उनके ऊपर हम थर्ड लेयर बिल्डअप करते हैं, तो हमारे पास जो थर्ड लेयर है वो हमारे पास डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट में आती है, और इस टाइप की अरेंजमेंट को कहते हैं ABC टाइप अरेंजमेंट. तो इसके अलावा तो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट. ठीक है. अब ये देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट लेयर है, ए लेयर है, फिर उसके ऊपर हमारे पास ए लेयर के ऊपर 2 टाइप के डिप्रेशंस हैं. ठीक है. ए एंड बी. जो हमने सेकंड लेयर बिल्डअप की है वो हमने बी होल्स के ऊपर की है. इसका मतलब हमारे पास 2 तरह के होल्स
बन गए हैं। एक तो जो हमने बी लेयर बिल्डअप किया उसके ऊपर हमारे पास एक नया होल आ जाता है सी, और फर्स्ट लेयर के जो अनऑक्यूपाइड होल पड़े हैं वो ए हैं। तो अब थर्ड लेयर अब बिल्डअप करते हैं, या तो हम बिल्डअप करेंगे सी होल्स के ऊपर, ठीक है, या फिर हम बिल्डअप करेंगे ए होल्स के ऊपर। अगर हम ए होल्स के ऊपर बिल्डअप करते हैं, फर्स्ट लेयर के ऊपर बिल्डअप करते हैं, तो अरेंजमेंट आती है ए बी सी अरेंजमेंट। और अगर हम बिल्डअप करते हैं आपके न्यू लेयर के ऊपर, तो वो बनती है अरेंजमेंट ए बी ए अरेंजमेंट, क्योंकि थर्ड लेयर जो है एग्जैक्टली फर्स्ट लेयर के ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो बोथ ऑफ जो दोनों ही अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है या क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, दोनों में ही हमारे पास 75% जो है अवेलेबल स्पेस जो होता है ऑक्यूपाई हो जाता है, ठीक है। तो दोनों ही जो है हमारी बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसके अलावा हमारे पास एक थर्ड अरेंजमेंट होती है, दैट इज नोन एज ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। इस बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में हमारे पास जो ईच स्फीयर है इट इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद 8 स्फीयर्स, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये तो टाइप्स के वॉइड्स होते हैं। एक होते हैं टेट्राइडल वॉइड, a simple triangular void like C in a crystal is surrounded by 4 spheres and is called a tetrahedral void। and एक होता है हमारे पास octahedral void, void like D is surrounded by 6 sphere and is called a octahedral void। और इसके अलावा ये देखिए हमारे पास दिस इज ए tetrahedral void and octahedral void, ठीक है। and these are the questions। what is ionic bond? list 4 characteristics properties of ionic compound। next है melting point of sodium chloride is higher than that of aluminum chloride, explain। thanks।